and as a company, Vestige will always be preferably as a supplement company, as a nutrition company. So if you guys want to work in this company, and if you guys really want to earn big numbers, big check in this company, it is very, very important to understand the importance of nutrition, importance of supplement in Vestige, right? And the biggest mistake people do in Vestige is they tends to just use the product and this and that, and they make their combinations, they do whatever they want to do. They give by listening to the YouTube channels and the YouTube videos, they tends to give a lot of products to the people, and then they say that, ma'am, the results are not coming, I'm not getting the desired results, I'm not getting the desired success. But main thing is you need to understand what is supplement, why supplement, and what are the importance of supplements, and then we discuss each and every segment. So as a company, Vestige have lots and lots of supplements, from heart range to calcium to joints and bone health to detoxification, to other products. But obviously in one training, in one meeting, obviously it's not at all possible to discuss all the supplements because it takes time, right? You also need to understand the products well, I also need to make you understand the products in a better way. So we will discuss each and every segment. If you will allow me, if you will ask Kushal sir to do these kind of trainings again and again, so I would surely request you to please attend the entire segment, the entire product trainings. But today we will be discussing certain supplements. So first of all, let's understand what is the need of supplements and what are supplements. So anything which can give you nutrition, which can give you vitamins, minerals along with your food, it is called supplements. Supplements are very important these days because no food we are consuming today is organic. Please let me make you guys very clear about this thing. All young people are here in this training today, and today everything which you are eating is adulterated, right? Everything from your vegetables to your fruits to the milk, the cows and buffaloes are injected to make them pregnant very frequently. Then they have been given hormonal injections, and all these things you are consuming in your body. Your body is not made to consume hormones, your body is not made to consume steroids, your body is not made to consume heavy metals, right? Your body is not made to consume fertilizers, insecticides, pesticides. But there are no food today available in the market which is organic, which is good, right? And that is the basic problem which are with our health, right? All this young generation, nobody wants to get disease, nobody wants to get ill, nobody wants to get into a certain kind of a problem, into hospitalization. But what is the reality, what is the reality for today, right? In our 30s to 35 we tends to start getting diseases. It may be a thyroid, PCOD, PCOS, right? When we are young, maybe we don't understand these things because we are young, our body is young, we are not getting diseases. But at a certain point of time we tends to get these diseases, and they are very problematic to us. So soil depletion is the major cause. Then hybrid crop, we are actually consuming a lot and lots of supplements these days. Sorry, lots and lots of vegetables, fruits and vegetables these days, which are not easily available in a certain kind of a climate, or maybe in a certain kind of a conditions, place. So we are using hybrid crops, the crops are hybrid on a day-to-day basis, and then we consume them. Fertilizers, excessive use of fertilizers, right? The farmers are using so many fertilizers these days that it's a big problem for us. I have traveled to one place called in Maharashtra, Pune. So I've traveled there and I've met a lot of farmers. And you know what they told me? You will be astonished to know that they told me that, ma'am, we grew हम जो है कैप्सिकम और जो एग प्लांट होता है, बैंगन जिसको हम बोलते हैं, so we cultivate capsicum and eggplant, but we don't consume them.
right? We don't consume them. Why? Because we put so much of chemicals, so much of fertilizers in them that we know that we cannot consume it, and we are consuming eggplant or capsicum or potatoes. There was one village in Haryana. They were cultivating potatoes, and there was lots of cases of cancer. So when government went there and they analyzed the entire situation, they found out that they were using certain kinds of fertilizers and pesticides in their crop which were actually causing cancer in the body, right? So do you understand the problem which is actually happening, right? So we are consuming all these crops, we are consuming all the food which is having lots and lots of chemicals, fertilizers, even the non-veg, the chicken, the eggs we are consuming these days. Oh my god, you can't even imagine the problem, right? You can't even imagine what they grow through. Injections have been given to the chickens so that they grew up fast, so that they grew up big, and they can sell them in huge amounts. And when you are eating all that non-veg, you are actually consuming all those hormones inside your body, right? So please don't underestimate the power of nutrition, the underestimate the power of supplement, because I must tell you that all those 1000 people, they you all guys need good nutrition and good knowledge of supplements, right? Transportation, we are transporting food from one place to another place. Food processing, we are consuming so much of processed food, processed cheese, processed milk, processed, each and everything is processed nowadays, ready to eat, processed. Guys, please, you are young generation, right? You are the people you are the new young generation who will be representing India in the coming times. And if you will be diseased, you will be having thyroid, you will be having diabetes, you will be having cholesterol, you will be having cancer in your bodies, what we will be left out with, right? Weak digestion. We are eating food nowadays, but we are not getting the food is not getting digested in our body in a proper manner. And obviously the poor food preparations, right? You cook food, but in India we cook food so much then the nutritional quality of the food gets bad. And also when we cook food in aluminium utensils, right? In most of our households we find aluminium utensils. When we cook food in aluminium utensils, they are actually toxic for us, they are actually causing cancer in our body, right? So they are very very harmful for us. So rather than buying stainless steel utensils, or rather than buying good utensils, we actually go ahead and buy aluminium utensils. Only why? Because when we are in the market, when we are standing to buy the products, the stainless steel utensil is coming in around maybe 2500 bucks, and aluminium utensil is coming in 500 bucks, right? So we think that, oh, this is such a cheap product, let's buy that, right? This is much better, we only have to cook sabzi, why to waste 2500 bucks? But you are actually not looking at that it is actually causing so much of toxicity in your body, and even it leads to cancer. Using of aluminium foils, when I have so many people in my training, why not utilize this time and why not utilize my knowledge to tell you about all these problems? When you are using aluminium foils for wrapping your food, this is actually a cause of cancer in your body, right? People are so happy to use aluminium foils. I guess each one of you must be using aluminium foils in your day-to-day life, in your households, to wrap food for your father, to wrap food for your children's. But actually this is causing a lot of toxicity in your body and major cause of cancer inside our body, right? So and one more thing, let's I hope that you are my I'm able to make you understand. Is everybody is very much comfortable with English, or should I speak in any other? Okay, थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी डिस्कस कर लीजिए. Okay, थोड़ा हिंदी okay, चाहिए perfect, perfect. हिंदी चाहिए? हाँ, थोड़ा हिंदी और थोड़ा इंग्लिश में. थोड़ा हिंदी इंग्लिश, ओके ओके, चलिए. तो ऑब्वियसली देखिए, मैं आपको, आप इतने सारे लोग अगर आज मुझे सुन रहे हैं, तो मैं ये सपोर्ट
अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल लेना चाहूंगी कि मैं आप सब इस यंग जनरेशन को समझा पाऊं कि आप जो एल्यूमिनियम फॉइल्स आप अपने घरों में यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इट इज कॉजिंग टॉक्सिसिटी इन योर बॉडी। एल्यूमिनियम के बर्तन हम सब अपने घरों में यूज करते हैं, right? And then the plastic bottles which you are using to keep your water inside your cars or whatever, right? जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम अपनी गाड़ियों में प्लास्टिक की बोतल लेकर चलते हैं, and when we place that car in sun, right? जब हम धूप के अंदर उस गाड़ी को खड़ा करते हैं, the water gets heated, जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है, heat up होता है, and when you are consuming that water, जब आप वो पानी पीते हैं, you are actually consuming cancer, right? आप actually में toxicity को consume कर रहे हैं, आप cancer को consume कर रहे हैं। So why we are using just because they are cheap? क्यों यूज कर रहे हैं हम? क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सस्ता है, क्योंकि वो चीप है, राइट? यूजिंग अ ग्लास बॉटल मे बी वेरी वेरी गुड। एक ग्लास बॉटल, स्टेनलेस स्टील की बॉटल आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। गाइस प्लीज डोंट प्ले विद योर लाइफ, राइट? सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ supplements? Now let's discuss why we need supplements. We have discussed, but what is the importance? What are the benefits we will get when we are consuming supplements? तो देखिए इंडिया में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें डॉक्टर्स बड़े अच्छे लगते हैं, राइट? वी ऑल लव डॉक्टर्स, वी ऑल वांट टू गो टू हॉस्पिटल्स। थोड़ी सी छींक हुई हॉस्पिटल भाग जाए, थोड़ा सा बुखार हुआ हॉस्पिटल भाग जाए, कोई भी बीमारी हुई लेट्स रश टू दी हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स के पास भागते हैं। आप में से कुछ लोग होंगे, ऑलमोस्ट 1000 लोग हैं इस ट्रेनिंग में, तो मेरी ख्याल से 50 लोग ऐसे जरूर होंगे जिनके घर में पेरेंट्स को डायबिटीज होगा। वैसे मैं बहुत कम नंबर बता रही हूँ, आई एम स्पीकिंग वेरी लेस नंबर्स, बट उससे ज्यादा ही नंबर्स होंगे जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज होगा, राइट? अब अगर डायबिटीज होता है घर में किसी को, तो व्हाट वी डू इज वी रश टू द हॉस्पिटल, वी गो टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर रिकमेंड मी सर्टेन काइंड ऑफ मेडिसिन। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कोई दवाई लिख कर दे देता है कि भाई आपको डायबिटीज हो गया है, अब आप ये गोली खाना शुरू कर दो, यू नो। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वी कैन नॉट क्वेश्चन डॉक्टर। हम किसी भी डॉक्टर को क्वेश्चन नहीं कर सकते, राइट? हम उससे पूछ नहीं सकते कि सर अगर मैं ये गोली खाऊंगा तो क्या मुझे इसका कोई नुकसान होगा? आई फील सो एस्टोनिश्ड, मेरे को इतना अचंभा आता है, आई फील सो एस्टोनिश्ड, सो सैड कि आप में से ज्यादातर लोग सप्लीमेंट के बारे में पूछ लेते हैं। अगर मैं सप्लीमेंट खाऊंगा तो मेरी बॉडी में कोई नुकसान तो नहीं होगा? अगर मैं सप्लीमेंट खाऊंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर मैं सप्लीमेंट खाऊंगा तो मेरे को इसका एडिक्शन तो नहीं हो जाएगा? कहीं मैं ये दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? तो सारे लोग पूछते हैं, वी आर सो वेल अवेयर अबाउट इट, पर डॉक्टर की एलोपैथी मेडिसिन के लिए कभी नहीं पूछते, राइट? इट इज 100% गारंटी कि जब आप डायबिटिक की मेडिसिन खाना शुरू करते हो तो आपको ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है, राइट? इट इज, अगर आप डायबिटीज की मेडिसिन खाना शुरू करते हो, दे कॉज सीवियर इफेक्ट्स इन योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। आपको कोलेस्ट्रॉल की गोली खानी पड़ेगी, right? When you start consuming diabetes medicine, you have to consume kidney you will get kidney disorders, आपको किडनी की प्रॉब्लम होगी, and you have to consume kidney medicines, right? तो धीरे धीरे आपने एक गोली खानी शुरू की, सीधा पैटर्न, आपने एक गोली खानी शुरू की, फिर दूसरी गोली घर में आई, फिर तीसरी गोली घर में आई, फिर चौथी गोली घर में आई, एंड बाय द एज ऑफ 60 वी आर लेफ्ट आउट विद सो मेनी मेडिसिन्स बिसाइड आवर बेडसाइड, राइट? 60 साल की उम्र में एक थैला पड़ा हुआ है मेरे बेड की साइड पे और जिसमें बहुत सारी गोली है, और हर गोली क्या कर रही है? ध्यान से ऑब्जर्व करो, हर एक गोली पहली गोली के साइड इफेक्ट को कम कर रही है। दैट्स ऑल all the medicines are doing, right? Why you want to go ahead with that? Do this life we really want to live? Do this type of a lifestyle we want for ourselves or for our future generation? No. So we need to understand, this is the right time, we need to understand the importance of supplements, the importance of nutrition in our day-to-day life, right? मदर नेचर ने कोविड की सिचुएशन में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि भैया अपनी बॉडी की इम्यूनिटी, योर ओन बॉडी इम्यूनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर लाइफ, राइट? डॉक्टर्स कोई आपको ट्रीट नहीं कर पा रहा है, कोई आपको ठीक नहीं कर पा रहा है। each and everybody is saying what? Consume vitamin C, consume vitamin E, consume zinc, consume selenium. Why? Because these are the nutrients which are actually aggravating your immunity levels, right? If they can cure you from COVID-19, why can't they help you with diabetes? Why can't they help you with cholesterol? Why can't they help you with cancer? They can help you with each and every disease, right?
So please try to understand that the solution of each and every disease is not medicine. The solution of each and every disease is your lifestyle. Change your lifestyle, live a good lifestyle, sleep well, do some kind of a physical activity, right? And always consume good food. Whatever you are eating, every disease, I want to take this opportunity, मैं ये opportunity लेना चाहूंगी और आप सबको बताना चाहूंगी, हर एक बीमारी को आप रिवर्स कर सकते हैं, राइट? मैक्सिमम, काफी हद तक, राइट? हर प्रॉब्लम को आप कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं. द ओनली थिंग इज यू हैव टू कंज्यूम गुड न्यूट्रिशन फॉर दैट, राइट? आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, उसका कारण है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, राइट? डू यू नो कि जब आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो आपकी बॉडी में डायबिटीज होता है, राइट? Because of severe deficiency of vitamin D, our body tends to get insulin resistance, and that is actually showing you the issues of diabetes, right? अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी, then your body tends to make lot of cholesterol. अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि हमारी बॉडी विटामिन डी को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल का यूज करती है. तो जब बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी को लगता है कि अगर वो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाएगी तो वो ज्यादा विटामिन डी बना पाएगी. बट आप विटामिन डी के अंदर बैठते ही नहीं है, आप सूरज में बैठते ही नहीं है, आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और आपको रिपोर्ट्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई आते हैं. बट वो एक्चुअली क्या कर रही है? बॉडी, बॉडी का रिस्पॉन्स है कि वो अपने आप को विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बचाने के लिए वो कोलेस्ट्रॉल बना रही है, राइट? तो लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन. तो जब आप सप्लीमेंट खाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, व्हाटएवर काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज देयर इन योर बॉडी, इट एक्चुअली क्योर्स दैट, इट एक्चुअली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दैट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. एंड बिकॉज most of the diseases are happening because of the nutritional deficiencies, हमें बहुत सारी बीमारियों को भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है. तो सप्लीमेंट से क्या फायदा होता है? एक, हमें अच्छा न्यूट्रिशन, पोषण मिलता है, और दूसरा, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो है वो पोषण की कमी के कारण होती है, तो हमें बहुत सारी बीमारियों को भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है. So if I know that most of you are sitting here for your business, for Vestige, for your checks, for everything, but I request each one of you to please listen the training very nicely and concentrately, because अगर ये आपको और कुछ नहीं करेगा तो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी कोई ना कोई बीमारी को कंट्रोल करने में आपकी जरूर मदद करेगा, right? So first product we will be discussing today is Seabuckthorn. First of all, we will be discussing today is our prime section, right? In Vestige prime section. As I have told you that we have different section in Vestige. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास बहुत सारे sections हैं Vestige के अंदर. Prime के अंदर हमारे पास कुछ product हैं. Then heart के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है जैसे फ्लेक्स ऑयल, कोएंजाइम Q10, LRG9. उसके बाद हमारे पास कैल्शियम, जॉइंट एंड बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, कोलाजन, डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं. बट एज आई अंडरस्टैंड कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो 30-40 मिनट से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है. आज हम सिर्फ एक सेगमेंट को डिस्कस करेंगे, ओनली वेस्टिज प्राइम सेगमेंट को डिस्कस करेंगे. एंड मे बी ऑन एवरी सैटरडे वी कैन हैव मीटिंग लाइक दिस, और जिसमें हम धीरे धीरे करके सारे वेस्टिज के सेगमेंट्स को कवर करें. Every Saturday we can have meetings like this on Zoom so that we can cover all the segments of Vestige products, and I will be make you more aware about the Vestige supplement range, right? So today we'll be discussing about our Vestige Prime segment. The first product in Vestige Prime segment is Seabuckthorn. So Seabuckthorn, for Seabuckthorn जो है एक बेरी होती है जो कि लेह लद्दाख के अंदर अवेलेबल होती है, लेह लद्दाख के अंदर मिलती है. Basically its name is Seabuckthorn, but it has no connection with sea at all. It is a berry. It actually grows on a plant, right? तो लेह लद्दाख के अंदर आपको Seabuckthorn मिलता है, जो कि अगर आप कभी लेह लद्दाख जाएं तो please try Seabuckthorn tea over there. I would
strongly recommend. It's a very refreshing, very nice tea, which is generally served in Leh Ladakh. Leh Ladakh के अंदर आपको ये मिलती है, right? उसके अलावा you can have it in Asia, Europe, Russia, Canada, इन सब areas के अंदर आपको सी बकथॉर्न की चाय, सी बकथॉर्न as a berry आपको यहाँ पर मिलता है. So what sea buckthorn does is DRDO. I would request each one of you to please write DRDO, Defense Research and Development Organization. जब आप सी बकथन की बात करें, whenever you are talking about सी बकथन, always mention this one name, DRDO, Defense Research and Development Organization. What is this? ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हमारे आर्मी, हमारे जो आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, उनके लिए रिसर्च करती है. So DRDO has picked up this berry and make several products out of it, and they have circulated all the products to the army officials. उन्होंने इस बेरी को लिया, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए और आर्मी ऑफिशियल्स, हमारी सेना को दे दिए, so that they can be active, उनकी बॉडी में एक्टिवनेस रह सके, उनकी बॉडी को एक्टिव रखने में मदद कर सके. साथ ही साथ सी बकथॉर्न जो है वो एस्ट्रोनॉट्स को दिया जाता है. सी बकथॉर्न हैज बीन गिवन टू एस्ट्रोनॉट्स एज वेल, दोज हु ट्रेवल इन स्पेस शटल्स, ताकि उनकी बॉडी की ऊर्जा को मेंटेन किया जा सके. So what are the benefits of sea buckthorn? It has 190 bioactive compounds, right? 190 bioactive compounds. So let's understand what are the importance of 190 bioactive compounds. Everyone is consuming food. I am consuming food, right? वही दाल रोटी सब्जी चावल. You are consuming दाल रोटी सब्जी चावल. Everybody is consuming almost the same food. Then why there is a difference in the energy levels? राइट आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों की बॉडी में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत एनर्जी होती है. दे हैव सो मच हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, दे आर ऑलवेज प्रोडक्टिव, दे आर ऑलवेज वर्किंग. ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों को खाना खाते ही 2 घंटे की नींद निकालनी होती है, राइट? ऑन द अदर हैंड some people want to sleep whenever they are consuming food. So ये difference क्यों आता है? Because there are certain things which actually convert our food into energy, right? बहुत सारा ऐसा पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, चीजें होती हैं जो हमारे खाने को ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं, राइट? तो whenever we consume food, whenever I'm consuming food, I'm consuming दाल चावल रोटी सब्जी, right? And I'm deficient in all these bioactive compounds, my food is not getting converted into energy, it is converting into fat. राइट अगर मेरी बॉडी में बायोएक्टिव कंपाउंड्स की कमी है तो मेरा फूड जो है वो ऊर्जा में परिवर्तित होने की बजाय किस में कन्वर्ट हो रहा है? फैट में कन्वर्ट हो रहा है, विच इज एक्चुअली मेकिंग मी ओबीज, विच इज एक्चुअली मेकिंग मी फैट, राइट? जिसकी वजह से मैं खाना भी खा रही हूँ, अच्छा खाना भी खा रही हूँ, बट फिर भी मुझे मोटापा हो रहा है. I'm gaining weight, and that is the biggest problem nowadays, right? The metabolism. People are eating food, people are not eating food, but they are getting obese day by day, right? So ये क्या करता है? आपकी बॉडी को एक्टिव रखने में मदद करता है. So all of those people, आपके clients, आपके घर में जो भी लोग हैं, those who feel lethargic, those who does not feel good amount of energy in their body, your mothers who feel lethargic at a certain point of time, मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, थक जाती हूँ, मुझे थोड़ी देर के बाद बैठना पड़ता है, kindly give sea buckthorn to all those people, right? You can give sea buckthorn to all those people who feel lethargic, who does not feel good amount of energy in their body, who their metabolism in low and they want to reduce weight, right? Kindly with Veslim range, if you will consume if you will combine sea buckthorn, अगर Veslim range के साथ आप sea buckthorn को combine करेंगे, the metabolism will increase, metabolism increase होगा और उससे क्या होगा? You will have a very good amount of results, right? आपको बहुत अच्छे results मिलेंगे. Maintain high energy, ऊर्जा मतलब एनर्जी को बनाने में मदद करता है, and it is a very good supplement for your immunity as well. अगर आप देखेंगे तो उसमें वो सारा न्यूट्रिएंट है. It has vitamin C which doctors are using nowadays to cure you, to prevent you from COVID-19. It has vitamin E, which is a very, very important nutrient for immunity. It has zinc, which is again a very, very important nutrient for immunity, and it has selenium, right? तो उसमें वो सारा nutrition और पोषण है, which is actually helping you for your health, for your immunity, and for your high energy levels.
देन इट मेंटेन्स योर स्टेमिना, जिन लोगों को थकावट होती है, एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं, नींद अच्छे से नहीं आती है, टेंशन रहती है, you can give this product to them. Cardiac benefits, right? Those who have any kind of a heart issue, heart problem, blood pressure, heart attack, heart functioning is not actually is proper, then you can give all this to them. Then actually it have a very good impact on thyroid function. It relieve hyperthyroid and hyperthyroid. So when you see thyroid patients, especially the hypothyroid patients, वो हमेशा lethargic रहेंगे, right? उनको हमेशा नींद आएगी, उनको एक्चुअली दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ द पर्सन. ये कोई ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपके सिस्टर को थायराइड है, राइट, और आप उसको देख के ये बोलते हैं यार यू आर ऑलवेज लेथार्जिक, यू आर ऑलवेज फीलिंग बैड, यू आर ऑलवेज फीलिंग हेवी, यू आर ऑलवेज नॉट फीलिंग गुड. So this is not a problem with the person, this is a problem with the thyroid condition, right? थायराइड की कंडीशन में बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, हैवी हो जाती है, काम नहीं कर पाती है, आप थक जाते हो. ऐसी कंडीशन में भी जब आप सीबकथॉन देते हैं, इट गिव्स यू ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स, राइट? फॉर थायराइड, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड, I would strongly recommend you to give your Cbuckthon. If you want to write the product for thyroid, please write down the products. For hypo and hyperthyroid both, you have to give flax oil. Flax oil is a very very important supplement for thyroid patients, right? Because hormonal imbalance ho jata hai, there is a lot of hormonal imbalance, the thyroid gland is not working properly, so you have to give flax oil. You have to give noni. Noni actually works wonders for thyroid patients because आपके cells में से गंदगी को निकालता है, toxins को निकालता है. Then you have to give Ganoderma. Ganoderma actually regulates the menstruation cycles in women. जिन ladies को मासिक धर्म proper नहीं आता है, जिनको menstruation cycles irregularity है, menopause है, या फिर फेस के ऊपर बाल आ जाते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ होता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट फॉर ऑल ऑफ दीज, राइट? मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को रेगुलर करता है. देन यू हैव टू गिव देम कोकोनट ऑयल, राइट? कोकोनट ऑयल एक्चुअली विल हेल्प देम टू इंप्रूव द मेटाबॉलिज्म फॉर द वेट लॉस. वेट को कम करेगा. जो आपके हाइपोथायराइड के पेशेंट्स हैं और जिनका वेट लॉस नहीं हो रहा है, इट इज अ ट्रेमेंडसली गुड प्रोडक्ट. कोकोनट ऑयल इज वेरी वेरी नाइस फॉर देम, राइट? तो ये एंड टॉक्सक्लीन जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है. तो along with Cbuckthon you can have these 4-5 products. Now I'm not saying you have to give all the 6 products, but yes, these are the products for the thyroid patients. So whenever you are having any type of a client who is having hyperthyroid or hypothyroid, please choose between all these products. इन चारों पांचों प्रोडक्ट्स में से हम उन्हें मेजर प्रोडक्ट्स देते हैं, राइट? और इम्यूनिटी को भी अच्छा रखने में आपकी मदद करता है. Now diabetes, right? Diabetes is a severe issue. You know that India is called as the capital of diabetes. भारत को डायबिटीज का कैपिटल कहा जाता है. और जितने लोगों को डायबिटीज नहीं है ना, जितने लोगों को शुगर नहीं है, उतने लोग जो है प्री डायबिटिक हैं. प्री डायबिटीज is a condition which is actually causing insulin resistance in your body. आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है और आपको डायबिटीज शुरू होने लग जाता है. So one thing I would request to each one of you, all the young generations, maybe you are in your 20s or 30s or 35 or 40, whatever. Whenever you are going for a diabetes test, always go for HbA1c test, right? Never go for a pre food diabetes or a post food diabetes test. Always go for a HbA1c test. I would request each one of you to please write down certain things. Please कुछ चीजों को आप लिख लीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ. HbA1c test क्या करता है? It actually gives you the average of 3 month of sugar. ये आपकी 3 महीने की शुगर जो है उसको चेक करने में आपकी मदद करता है. 3 महीने की शुगर को चेक करता है और आपको बताता है कि कहीं आप प्री डायबिटिक तो नहीं है, राइट? अगर आपको बहुत ज्यादा खराटे आते हैं, इफ यू स्नोर टू मच, कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिनको बहुत ज्यादा खराटे आते हैं. बेसिकली खराटे आना इज अ सिम्टम जो आपको शो करता है दैट यू आर डायबिटिक, राइट? या तो आपकी बॉडी के अंदर डायबिटीज, या तो आप प्री डायबिटिक है, या तो आप डायबिटीज के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और या आपका इंसुलिन जो है वो रेजिस्टेंट होने लगा है, आपका इंसुलिन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है. दोज हु
those who snore too much, उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राइट. स्किन प्रॉब्लम के अंदर ये भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है. इट गिव्स यू विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा 7. तो दोज हु आर सफरिंग विद रिंकल्स, जहां पर आप हेयर, स्किन एंड नेल्स देते हैं, जिनको पिगमेंटेशन है, जहां पर आप हेयर, स्किन एंड नेल्स देते हैं, इन एनी काइंड ऑफ अ स्किन इशू, राइट, वहां पर आप सी बकथॉर्न दे सकते हैं. एंड ऑल्सो इट हेल्प्स यू इन द गैस्ट्रिक इश्यूज. अगर किसी को गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी, सिवियर constipation, right, in all those conditions also sea buckthorn works wonder for you, right. तो चलिए, now let's understand what are the benefits of omega 7 which is present in sea buckthorn. omega 7 is a fatty acid. omega 7 एक तरीके का fatty acid होता है which is present in only 2 kinds of vegetable sources, जो कि सिर्फ 2 तरीके के vegetarian source में मिलता है, मैकेडेमिया नट ऑयल एंड सी बकथन. तो सी बकथन में आपको रेयर फैटी एसिड मिलता है जो कि है ओमेगा 7, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन, राइट. आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है. तो रिंकल्स, pigmentation, any kind of a premature aging of the skin, when you are giving hair, skin and nails, I would strongly recommend to give you sea buckthorn as well. What is the dosage? 1 capsule twice daily after meals. 1 capsule twice daily after meals. एक चीज, एक क्वेरी हम यहीं पे खत्म कर देते हैं, इसी ट्रेनिंग में खत्म कर देते हैं. Whenever you are consuming supplement, always consume 2 capsules a day minimum, right? Don't consume 1 capsule a day, please. 1 capsule does nothing to your body, right? It is too less for you to give you any results. बहुत ही कम डोज होता है. तो प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं तो कम से कम 2 कैप्सूल्स अ डे. प्रिवेंशन मतलब मेरी बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, कम से कम 2 कैप्सूल्स अ डे. अगर बीमारी है, अगर प्रॉब्लम है, अगर सिचुएशन है, तो फिर आपको डोज को बढ़ाना पड़ सकता है 3, 4. वो डिपेंड करता है कि आपको बीमारी किस तरीके की है, प्रॉब्लम किस तरीके की, राइट. एंड सेकेंड थिंग, राइट, पीपल कॉल मी एवरी टाइम एंड दे say me that ma'am I'm consuming sea buckthorn from last 15 days, मैं 15 दिनों से sea buckthorn खा रहा हूं but I'm not getting any kind of a results. Always consume product for 3 months regularly, राइट. अगर आप उन लोगों में से हैं जो एक दिन खाते हैं, दूसरे दिन नहीं खाते, चौथे दिन फिर याद आ जाता है, 5वें दिन फिर भूल जाते हैं, प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी एंड योर टाइम ऑन सप्लीमेंट्स, राइट. rather than that you go and consume allopathy medicines and make your body even more worse. क्यों? Because there is no benefit, there is no benefit out of it. कोई फायदा नहीं होगा आपको. When you are consuming supplements, always consume it for 3 months regularly. You will get tremendous amount of good results, right? कम से कम 3 महीने जब आप खाएंगे और रेगुलरली खाएंगे तभी आपको रिजल्ट आएगा, अदरवाइज आपको रिजल्ट्स नहीं आते. बिकॉज डिजीज कंडीशन में हम डैमेज कर चुके हैं बॉडी को, राइट. प्रॉब्लम बढ़ चुकी है तभी वो बीमारी में बदली है, राइट. अब वो सिर्फ डेफिशिएंसी पर नहीं रह गई है, अब वो डिजीज में बदल चुकी है. Now let's talk about the second product, that is Vestige Prime Combiotics. It's a very nice product. It's a बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है, कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी, राइट. जिन लोगों के पास ये प्रोडक्ट है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि वो अपनी जो डब्बी है, जो आपका जो पैकेजिंग है, उसको आप मंगवा लीजिए घर में किसी को आवाज देके, या आप जो है उसको ले लीजिए, राइट. कॉम्बोटिक्स के अंदर एक कैप्सूल होता है, व्हाइट कलर का एक कैप्सूल है. उसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको अंदर एक ब्लैक कलर का कैप्सूल मिलेगा. तो इट इज अ कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी, राइट. व्हेनेवर यू ऑर्डर दिस प्रोडक्ट, प्लीज ओपन वन ऑफ द कैप्सूल. बाहर एक व्हाइट कलर का कैप्सूल है जिसके अंदर आपको कुछ चीजें मिलेंगी, और फिर जब आप उसे हटाएंगे तो आपको अंदर एक ब्लैक कलर का कैप्सूल मिलेगा. यू विल फाइंड अ ब्लैक कलर ऑफ कैप्सूल इनसाइड अ कैप्सूल, राइट. तो कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी है. This technology is not as such available in India. भारत में ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बहुत ज्यादा मिलती नहीं है, इसलिए ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है, राइट. तो जो बाहर की कवरिंग है उसमें क्या है? मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल, बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो पीपल कॉल मी, लोग मुझे फोन करते हैं, दे आस्क मी देन मैम हमारे कौन से प्रोडक्ट में विटामिन डी बहुत अच्छे अमाउंट में. विटामिन डी आई वुड अगेन से यू, अगर आपको डायबिटीज है देन योर बॉडी मस्ट बी डेफिशिएंट इन विटामिन डी. कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी. ओबेसिटी, विटामिन डी.
यू आर नॉट लूजिंग वेट, इट मे बी बिकॉज ऑफ विटामिन डी। इम्यूनिटी पावर आपकी कम है, विटामिन डी। खाना आपको डाइजेस्ट नहीं होता, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, इट मे बी अ कॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी इन योर बॉडी, राइट? इट इज दैट इंपॉर्टेंट। पहला टाइम, पुराने टाइम में विटामिन डी सिर्फ कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हम जानते थे, नाउ द टाइम हैज गॉन, वो टाइम चला गया। विटामिन डी हैज मच मोर बेनिफिट्स देन दैट। हमारे कॉम्बर्टिक्स में अगर आप 2 कैप्सूल्स पर डे खाते हैं तो रोज की विटामिन डी डेफिशिएंसी को पूरा कर देता है। Then you have good amount of all the vitamin B, vitamin A, vitamin C, zinc, potassium, magnesium, selenium. So it is a wonderful product as a multivitamin, multi-mineral. Multivitamin, multi-mineral के लिए ये best product है, आप किसी को भी दे सकते हैं, right? For the illness, जो लोग बीमार हैं, प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, पुअर न्यूट्रिशन, जिन लोगों का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, those who are suffering from malnutrition, any kind of a nutritional deficiency, digestive disorders, I will talk in detail, और कोई भी मेडिकल कंडीशन, राइट? अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं, राइट, इफ यू आर कंज्यूमिंग एनी काइंड ऑफ अ मेडिसिन, अगर आप कोई दवाई खाते हैं, बेसिकली इंडिया में ये ट्रेंड ही नहीं है कि जब आप दवाई देते हैं तो उसके साथ आपको सप्लीमेंट देना है। अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक खाते हैं, it is always recommend to consume good amount of vitamin C, vitamin B and CoQ10 with that, right? अगर आप नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी, आपको और प्रॉब्लम होगी। अगर आप कोई भी पेन किलर खाते हैं, whenever you are consuming any kind of a pain killer, अब हमारे घर में क्या होता है, आपका सर में दर्द हुआ, आपने डिस्प्रिन उठा के खा लिया, आपका बॉडी में एक हुआ, आपने पेन किलर उठा के खा लिया। डू वी एवर कंज्यूम एनी काइंड ऑफ अ सप्लीमेंट्स विद पेन किलर्स? नो। And this is what which is hampering your kidney, your liver, your entire body. So जब आप पेन किलर्स खाते हैं, it is always recommended to give to consume any kind of vitamin B complex with that, right? Which is very much available in Combiotics. अगर आपको blood thinning medications चल रहे हैं, those who are parents are suffering from any kind of a blood thinning medications, those who are taking statin, जिनको heart attack आया है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, you cannot recover your heart without consuming CoQ10, right? If you are consuming statin, अगर आप blood thinning medications पे हैं, please sit across the table with your doctor, अपने डॉक्टर्स के साथ बैठिए and discuss the importance of CoQ10 with them. You are well educated individuals, right? You can talk to doctors, you can ask them, so what is the importance of CoQ10 in my diet, right? तो आप अपने हार्ट को रिकवर कर ही नहीं सकते हार्ट सर्जरी के बाद। अगर आप ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस पे हो, you have to consume coenzyme Q10 in your supplementation. तो it is very very important कि कुछ मेडिकेशंस के साथ हम कुछ सप्लीमेंट्स को लेना चाहिए, right? Now let's understand the importance of probiotics and prebiotics. प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक क्या फायदा करता है? See, our body is made up of body is made up of cells, बट हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, राइट? देयर आर 2 टाइप ऑफ बैक्टीरियाज इन आवर गट, इन आवर कोलोन. वन इज गुड बैक्टीरिया. द फूड ऑफ गुड बैक्टीरिया इज गुड फूड, होममेड फूड, राइट? जब आप बीमार होते हैं तो आपके घरों में दादी नानी बोलती है कि कंज्यूम कर्ड, दही खाओ, राइट? कर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फूड इन आवर इंडियन कल्चर. अगर आप हमारे इंडियन कल्चर को देखेंगे, हर घर में दही का उपयोग होता है, किसी ना किसी तरीके से दही का उपयोग होता है. Why? Because कर्ड हैज गुड बैक्टीरियाज. उसके अंदर क्या होते हैं? अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज होते हैं, राइट? पुराने टाइम में हमारे घरों में मम्मी दादी नानी अचार बनाते थे. दे यूज्ड टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ अचार. अचार जब बनता था तो अचार को बना के रख दिया जाता था, 2 महीने 3 महीने तक वो पकता था. इट यूज्ड टू फर्मेंट प्रॉपरली और फिर उसे घर में यूज करते थे. दैट्स द वे वी यूज्ड टू वी हैव ऑलवेज कंज्यूम्ड अचार, राइट? बचपन से लेकर आज तक हम ऐसे ही खाते हैं. नाउ एक्चुअली एवरीथिंग इज कमर्शियलाइज्ड, तो अब आपको अचार बाजारों में मिलने लगा है तो आप बाजार से लाकर खाते हैं. बट जो बाजार में अचार पकता है उसमें बहुत सारा विनेगर, केमिकल्स और चीजें डाली जाती हैं ताकि वो जल्दी पक जाए, राइट? बट जब हम घर का पका हुआ अचार खाते हैं तो वो क्या होता है? फर्मेंट, गुड बैक्टीरिया, राइट? इन साउथ द मेजर फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट फेमस
food is idli and dosa, right? What you do when you are making idli and dosa, you actually put dal and chawal, आप उसको पूरी रात ferment करते हैं and then you make idli and dosa, right? That's how you make the batter. But अभी क्या कर दिया है सब लोगों ने, it's a fermented food, उसके अंदर गुड बैक्टीरियाज हैं, राइट? लेकिन अब क्या कर दिया, रेडी टू ईट इडली बैटर, रेडी टू ईट डोसा बैटर. इट इज वर्थलेस, इट इज नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशन. सो गुड बैक्टीरियाज उसकी हमारे शरीर में क्या हो गई है, कमी हो गई है. एंड we have bad bacteria. What is the food for bad bacteria? Sugar, 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 sugar for feeding your bad bacteria. So we are पूरा दिन हम उनको खाना देते हैं, right? जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे को डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे पाइल्स की प्रॉब्लम. Everybody is have a piles problem. Everybody is having a constipation प्रॉब्लम. एवरीबडी इज हैविंग एसिडिटी. अगर आपको लगता है कि एसिड मेरे मुंह तक आ जाता है, मुझे रात को डकारे आती हैं, खट्टी डकारे आती हैं, अगर आपको कोई बोलता है कि I am not able to digest my food properly, I cannot eat outside because I have a stomach issue, please give Combiotics to all those people who have digestive issues, because it has good bacteria as well as prebiotics, which is the food for your good bacteria. तो it is a wonder product जो कि आपको बहुत अच्छे results देता है. डेली वेलबींग, आपकी जो डेली डे टू डे लाइफ की जो आपकी हेल्थ है उसे अच्छा रखता है. इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करता है. डाइजेस्टिव इश्यूज को कंट्रोल करता है. साथ ही साथ हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, कोई भी प्रॉब्लम है उसे भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है. अगेन द सेम थिंग आई विल रिकमेंड व्हेन यू आर कंज्यूमिंग फॉर प्रिवेंशन, कंज्यूम एटलीस्ट 2 कैप्सूल्स अ डे with food, right? Whenever I'm saying with food, that means just after consuming your food. जैसे ही आपने खाना खाया उसके बाद आपने Combiotics लिया और खा लिया. Whenever I'm saying after food, that means 30 to 40 minutes after your food, right? It's as simple as that. After meal, 30 minutes after meal. With food, that means either in between your meal or just immediately after you finish your food. राइट? किस किस को देना है? जिनका एपेटाइट खराब है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी खराब है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, जिनको कंसीव करना है, उन सब लोगों को आप Combiotics दे सकते हैं. Now I'll discuss the third product in the category, that is krill. Krill basically एक shrimp होता है जो कि which you get from the entire cold waters, that is Canada, Antarctica, Japan. जो ठंडा पानी जो होता है, chilled water, उसके अंदर आपको krill मिलता है. Canada, Antarctica, Japan जैसे एरियाज में आपको krill मिलता है. What are the benefits of krill? It actually gives you omega-3 fatty acids in the form of EPA and DHA. So the first question in your mind may be that, ma'am, can we consume both krill and flax together? Yes, you can consume flax and krill together, right? Krill के अंदर अलग omega-3 है. Krill has different type of omega-3 and flax have different type of omega-3. So you can combine both and you can have good results. आपके results को दोगुना कर देता है, तेजी से बढ़ा देता है, right? krill जो है हमारी ब्रेन डेवलपमेंट को मदद करता है. ब्रेन में मेमोरी, कंसंट्रेशन, याददाश्त को अच्छा करता है. सो यू कैन स्टार्ट krill एट द एज ऑफ 5 साल की उम्र से हम krill शुरू कर सकते हैं. जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, नीज हैं, जिनके घरों में जो है छोटे बच्चे जिनका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है, जो चीजों को याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वहां पर आप krill दे सकते हैं. मे बी छोटे बच्चे जो हैं दे डोंट लाइक टू कंज्यूम लॉट ऑफ krill, उनको कैप्सूल नहीं खाना है, तो कैप्सूल को प्रिक करके पानी के अंदर डाल दीजिए और उसे मिलाकर आप बच्चे को पिला दीजिए. You have to prick the capsule and you have to mix the oil inside the water and you have to mix it and you can make it, you can give it to the child, right? आप उसको ऐसे भी दे सकते हैं. There is no need to give the capsules if he is not ready to consume it. Next, krill के अंदर होते हैं phospholipids, right? So phospholipids जो होते हैं, हमारे सेल्स के अंदर phospholipids होते हैं और krill में phospholipids होते हैं.
जिसकी वजह से क्रिल का एब्जॉर्प्शन, क्रिल मेरी बॉडी में बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होता है. Okay, I'll make you understand in a layman language. I know Kushal sir, right? मैं कुशाल सर को जानती हूँ. So whenever I'll see him in a market or in anywhere, I'll go to him and I'll talk to him. Yeah, hello sir, how are you? How the business is going? How's everything? How's everyone in the family and all, right? And now there is some other person whom I don't know, right? मैं उन्हें जानती ही नहीं हूँ. So what will happen is I don't go to him, I don't ask him anything. वो मेरे पास आएंगे, मुझे बताएंगे, हेलो मैम, आई एम इन वेस्टीज, मैं वेस्टीज में काम करता हूँ, आई एम दिस, आई एम दैट. वो पूरे 15 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद मैं उनसे हाय हेलो करूँ, राइट? दिस इज व्हाट हैपन. सो आवर बॉडी नोज फॉस्फोलिपिड, हमारे शरीर को फॉस्फोलिपिड का पता है, क्योंकि वो हमारे सेल्स के अंदर ऑलरेडी है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे सेल्स इमीडिएटली क्रिल को एब्सॉर्ब कर लेंगे. Whenever you want immediate results, whenever you want fast results, right? मैम किसी को 80% ब्लॉकेज है, क्या दूं, क्रिल या फ्लेक्स? क्रिल, राइट? अगर आपको किसी को तेजी से रिजल्ट देने हैं, फास्ट रिजल्ट देने हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में इमीडिएटली एब्सॉर्ब हो जाता है, राइट? फ्लेक्स को बॉडी में एब्सॉर्ब होने में टाइम लगेगा, बट क्रिल बॉडी में जाएगा और एब्सॉर्ब हो जाएगा. सो इट एक्चुअली increases the absorption process in your body और आपके जो results हैं उनको तेज कर देता है. Also, I want to make you understand one thing. आप किसी भी सप्लीमेंट के साथ क्रिल को दे दीजिए, ये उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, राइट? अगर आप कैल्शियम दे रहे हैं, उसके साथ इफ यू विल गिव क्रिल, उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा. अगर आप ग्लूकोसामाइन दे रहे हैं, यू विल गिव क्रिल, ये उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा. क्योंकि अगर मान लीजिए कुशाल सर किसी के साथ जाते हैं जो उनको जानता है, तो जो अननोन होगा उसको भी आप, उसके भी आप बात करेंगे, क्योंकि आप कुशाल सर को जानते हैं, राइट? सो ये एक नोन चीज है बॉडी के लिए, तो इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है. एंड लास्ट इज एस्टाजेंथिन. सो इन वेयर ऑन ऑल दीज थिंग्स व्हिच यू हैव टू गिव क्रिल, हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन, हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन. And for liver, those who are suffering from fatty liver, those who are suffering from liver fibrosis or cirrhosis, you have to give krill. First product is krill. Second product is curcumin. Fatty liver, liver fibrosis, liver cirrhosis, first product is krill. Second product is curcumin, and third product is liver health, right? You have to give all these three products to them. Then it reduces the cholesterol level, it reduces the blood clots, जिनको blood clot होते हैं, 80% blockage, 50% blockage, उसे कम करता है. joints, आपकी हड्डियों में जो पेन होता है, joints में जो पेन होता है, उसे कम करता है. memory, याददाश्त, concentration, alertness को अच्छा करता है, और साथ ही साथ हमें बहुत सारे health benefits भी देता है. Again, I'll recommend one thing. Consume at least 2 capsules a day with food, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो डोज को आप 3-4 कैप्सूल्स तक भी बढ़ा सकते हैं. इफ मे बी समबडी इज हैविंग अ ब्लड क्लॉटिंग, 80% अगर ब्लड ब्लॉकेज है, तो आप उसको डोज को 4 कैप्सूल्स तक भी बढ़ा सकते हैं. Now the other product we will be discussing is Metamind. This is the last product for today's training. After that I will take all the queries जो आप लोग chat box में अभी लिख रहे हैं शायद, right? So I would request to each one of you to not write anything right now in the chat box. I will take each जो आपकी जो queries आ रही हैं उनको the last में जब मैं खत्म करूंगी उसके बाद I will take all the queries. So Metamind is a powerful product. First of all, I would tell you that जब आप Metamind किसी को देते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ Metamind देते हैं, क्योंकि इसके पीछे अगर जो भी मैं आपको बताऊंगी उसमें 50 से भी ज्यादा रिसर्चेस हो चुकी हैं, राइट? ह्यूमन रिसर्चेस की मैं बात कर रही हूँ. जब मैं 50 रिसर्चेस की बात कर रही हूँ, एविडेंस की बात कर रही हूँ, तो वो ह्यूमंस के ऊपर हुई है. मेटामाइंड के अंदर क्या है? फॉस्फोलिपिड्स. अगेन जैसा कि हमने बताया कि फॉस्फोलिपिड्स बॉडी के अंदर होते हैं, तो मेटामाइंड में भी फॉस्फोलिपिड्स है, लेकिन वो किस फॉर्म में है? फॉस्फेडाइलसिरीन. फॉस्फेडाइलसिरीन एक्चुअली वर्क्स फॉर आवर ब्रेन. हमारे ब्रेन को फॉस्फेडाइलसिरीन की जरूरत होती है, तो हमारे मेटामाइंड में फॉस्फेडाइलसिरीन है.
प्लस इसके अंदर फेरिक सैचुरेट है जो कि उसे एलिमेंटल आयरन देता है, राइट। तो सबसे पहले ये क्या करता है, ब्रेन को इंप्रूव करता है। सी इन इंडिया द बेसिक प्रॉब्लम इज वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट ओवरऑल हेल्थ। हम ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट बीइंग हेल्दी, वी टॉक अबाउट ओवरऑल हेल्थ। हम हमेशा बात करते हैं कि हमारा शरीर जो है हेल्दी रहना चाहिए, बट वी नेवर टॉक अबाउट ब्रेन हेल्थ, राइट। दिमागी विकास, दिमाग की हेल्थ, दिमाग के पोषण की हम कभी बात नहीं करते हैं। मेटामाइंड इज अ पावरफुल प्रोडक्ट जो कि हमारी ब्रेन की हेल्थ को अच्छा करता है। कंसंट्रेशन, जो आप बार बार माइंड जो है वो कंसंट्रेट नहीं हो पाता, उसे बढ़ाता है। अटेंशन, लर्निंग, हमारी याददाश्त को अच्छा करता है। बिहेवियरल एक्टिविटीज को अच्छा करता है और स्ट्रेस को भी मैनेज करने में हमारी मदद करता है। मेटामाइंड 12 साल के ऊपर शुरू करते हैं। साथ ही साथ मेटामाइंड जो है ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चों के लिए, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट विच इज ओनली हैज टू बी कंज्यूम्ड बाय चिल्ड्रंस, बिकॉज बच्चों का दिमाग जो है तेज करने की जरूरत है, बड़ों का नहीं। देखिए, आप जब कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हैं यू हैव टू लर्न अ लॉट। इवन जब हम बूढ़े होते हैं तो हम याददाश्त भूलते हैं, वी फेस अ प्रॉब्लम ऑफ डिमेंशिया, वी फेस अ प्रॉब्लम ऑफ याददाश्त, मतलब हमारी याददाश्त जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो किसी को भी जब आप मेटामाइंड देते हैं तो ये आपकी ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करता है। First ever US FDA approved formula in Vestige. Yes, this is the product which has been approved by US FDA and GRAS. GRAS मतलब ये 100% सेफ है कंजम्पशन के लिए, राइट। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, हर एक डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर मेटामाइंड फॉस्फोडाइलसिरीन जो है ये एज अ प्रोडक्ट जो है वो यूज किया जाता है। फॉस्फोडाइलसिरीन एज अ सप्लीमेंट यूज किया जाता है ताकि वो आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को अच्छा कर सके। लेना कैसे है, जस्ट 1 टैबलेट अ डे, एक टैबलेट आपको रेगुलरली लेनी है, राइट। और आपको इसे च्यू करना है, दीज आर च्यूएबल टैबलेट्स, यू हैव टू च्यू देम, राइट। प्रॉपरली आपको इसे च्यू करना है और 12 साल के ऊपर आपको इसे शुरू करना है। सो दोज जिन लोगों को जो लोगों के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं 5 साल एंड अबव, 5 इयर्स एंड अबव, आप 3 प्रोडक्ट्स जो है वो जरूर शुरू कर दीजिए। फर्स्ट इज क्रिल ऑयल, सेकंड इज कोलेस्ट्रॉम, थर्ड इज इनविगो प्रोटीन पाउडर, राइट। 5 साल से लेकर 12 साल तक 3 प्रोडक्ट रेगुलरली चलने चाहिए, क्रिल ऑयल, कोलेस्ट्रॉम एंड इनविगो प्रोटीन पाउडर। Above 12 years, then we have certain different products, that is Metamind. Then we can give them spirulina, then we can give them the normal protein powder. तो उसके बाद जो है उनका requirement बदल जाता है, right? So these are the products in the prime range. I hope I'm able to make you all understand all these 4 products deeply and properly. So ये हमारे प्राइम रेंज के अंदर ये 4 ही प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको मैंने आज समझाए हैं. Now I would see if there are queries. I know that there must be so many queries. You can write your queries. थायराइड का जो सप्लीमेंट है अगर रिपीट कर देंगी, यस सर, थायराइड के अंदर आपको लेना है फ्लेक्स, आपको लेना है सीबक्थन, आपको लेना है नोनिंग, आपको लेना है गैनोडर्मा एंड टॉक्सक्लीन, राइट. To become slim and fit, which products have to be consumed? Sir, you can consume Veslim range, जिसमें Veslim shake, Veslim capsules and Veslim tea है. Then you can always combine Sebacthan and coconut oil along with that to increase the metabolism, right? उनको हम आगे जरूर discuss करेंगे. I would request each one of you to please have a word with Kushal sir and request him that he कि वो हमेशा ये trainings ऐसे करवाएं and हमें भी opportunity दें कि हम आप लोगों के साथ बातचीत कर सके. डायबिटीज के लिए सर, डायबिटीज के लिए we have Gluco Health, we have Neem, we have Sebacthan, we have Flax oil. मेटामाइंड कब लेना है? आफ्टर मील, खाना खाने के बाद आपको इसे च्यू करना है. आफ्टर मील, खाना खाने के बाद. there are so many queries, oh my god, मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ.
irregular menstrual cycle, the same products जो मैंने आपको थायराइड के लिए बताए हैं, you have to take flex, you have to take ganoderma, you have to take your toxclean, ये सभी नोनी, ये सभी प्रोडक्ट जो मैंने आपको थायराइड में बताए हैं, ये इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेनोपॉज और किसी भी तरीके की लेडीज के हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ यू कैन टेक शतावरी, बट उसके लिए आपको प्रॉपर जो है चीजों को समझना पड़ेगा। I use protein powder. Can I take krill? Yes, sir. You can consume krill with protein powder. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेटामाइंड कैसे लेना है सर? आपको 1 कैप्सूल पर डे च्यू करना है और खाना खाने के बाद लेना है। पीसीओडी द सेम प्रोडक्ट। पीसीओडी भी अगेन एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आप जो है यही सेम प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। फ्लेक्स, नोनी, गैनोडर्मा, टॉक्सक्लीन, सी बक्थन, कोकोनट ऑयल, ऑल दिस प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस में यही सेम प्रोडक्ट्स आपको काम करेंगे। एल्जाइमर पेशेंट के लिए यू हैव टू गिव मेटामाइंड, यू हैव टू गिव क्रिल ऑयल, यू हैव टू गिव कोएंजाइम Q10। ये सभी प्रोडक्ट्स आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। सप्लीमेंट फॉर वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स, आई एम सॉरी, मैं सब क्वेरीज के जवाब नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत तेज लिख रहे हैं और मैं कुछ कुछ ही पढ़ पा रही हूँ। राइट, वेरिकोज वेन्स के लिए आप LRG9, LRG9 is a very good for a product for varicose veins. Then you have to give krill, krill is again very important. Then you have to give ganoderma। ये सब प्रोडक्ट्स आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। वन मोर थिंग आई वुड रिक्वेस्ट कुशाल सर की एक जो है क्वेश्चन आंसर की भी पूरी ट्रेनिंग हम लोग कर सकते हैं सर, 1 घंटे की, जिसमें ये बहुत सारी क्वेरीज हैं बेसिकली जो हम ले सकते हैं। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू। फॉर वेट गेन यू हैव टू टेक प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर जो है वो आप लीजिए, नोनी आप लीजिए, स्पारुलिना आप लीजिए, ये तीनों ही प्रोडक्ट वेट गेन में मदद करते हैं। अगर स्टिल आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप एक काम कर सकते हैं, बनाना शेक आप बनाइए। अभी गर्मी का मौसम है, आराम से आप बनाना शेक बना सकते हैं। बनाना शेक के अंदर 2 से 3 स्कूप प्रोटीन पाउडर आप डाल के पीजिए तो वेट गेन आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। डोसेज फॉर क्रिल ऑयल, अगर आप हेल्दी हैं तो 2 कैप्सूल्स अ डे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो डोज को आप बढ़ा सकते हैं। विटामिन B12 के लिए कौन सा सप्लीमेंट है? कॉम्बायोटिक्स। इट हैज ऑलमोस्ट 100% ऑफ विटामिन B12 अकॉर्डिंग टू RDA। काफी अच्छी मात्रा में विटामिन B12 उसके अंदर है। वेट लॉस करने के लिए सर मैंने ऑलरेडी बताया, वी हैव वेस्लिम रेंज जो हम आगे डिस्कस करेंगे। देन वी हैव कोकोनट ऑयल, देन वी हैव फ्लेक्स ऑयल, ये सब आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। सीबक्थन। Side effects, there are no side effects of the supplements because this is not medicine, right? ये भोजन नहीं है। क्या हम आंवला नहीं खाते हैं? क्या हम फ्लेक्स ऑयल नहीं खाते हैं? राइट, दिस इज ऑल फूड, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये हो सकता है दिस में भी अ प्रॉब्लम कि कोई प्रोडक्ट किसी को सूट नहीं किया, क्योंकि हर किसी को हर खाना भी सूट नहीं करता है। राइट, लोगों को एग से भी एलर्जी है, लोगों को फिश से भी एलर्जी है, लोगों को प्याज से भी एलर्जी है। तो ये हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट किसी को सूट ना करे, लेकिन कोई साइड इफेक्ट किसी प्रोडक्ट का ऐसा नहीं होता। राइट, शुगर और ब्लड प्रेशर में क्या देना है? ब्लड प्रेशर कौन सा है? अगर ब्लड प्रेशर लो है, लो बीपी के अंदर हम ज्यादातर 2 सप्लीमेंट्स देते हैं, कोएंजाइम Q10 एंड प्रोकार्ड। और हाई बीपी में हम देते हैं फ्लेक्स ऑयल, प्रोकार्ड, कोएंजाइम Q10। राइट, ये तीनों प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। शुगर के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बताया दैट वी कैन गिव ग्लूको हेल्थ, वी कैन गिव नीम, वी कैन गिव फ्लेक्स ऑयल, ये सब प्रोडक्ट्स हम दे सकते हैं। मसल पेन, सर मसल पेन जो है आप उसमें LRG9 जरूर लीजिए, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में आपकी मदद करेगा। देन यू कैन हैव कोलाजन, कोलाजन गिव्स यू very good results. Then you give curcumin, curcumin also gives very good results in muscle pain. Right, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बेसिकली सर सप्लीमेंट से ठीक नहीं हो सकती है, इट हैज टू बी टेकन केयर बाय अ फिजियोथेरेपिस्ट। पाइल्स के लिए क्या देना है सर? यू हैव आंवला, यू हैव एलोवेरा, you have Sebucthan, you have Toxclean, so all these 4 products work very good for piles की problem. Amla, aloe vera, Sebucthan and coconut oil. Right, for pimples in skin I would strongly recommend कि वो depend करता है। देखिए
जब आप यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं तो वो डिपेंड करती है, अगर पिंपल्स पीसीओडी या थायराइड की वजह से हैं तो वही प्रोडक्ट चलेंगे जो पीसीओडी और थायराइड में चलेंगे। अगर पिंपल्स जो है वो आपका पेट खराब होने की वजह से है तो आंवला एलोवेरा और आपका टॉक्स क्लीन चलेगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट सर टू प्लीज have a word with all of us so that we can wind up with the session. I guess कि बहुत सारी queries हैं, you can mail all the queries to me to vaishali@mywestige.com, vaishali@mywestige.com, right? Vaishali, V for Vestige, vaishali@mywestige.com। तो जो क्वेरीज मैं आपके चैट बॉक्स में नहीं ले पाई हूँ, आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज मेल द क्वेरीज टू मी, right? We will answer all the queries within 24 to 48 hours, right? Thank you. So I would request Kushal sir to please talk to us and let us know that how's the training for today. Thanks a lot, ma'am. बहुत अच्छा था मैम आज का मीटिंग, और we all have literally understood the prime products जो भी आपने बताया, whether it is Seabuckthorn, whether it is your krill oil and Combiotics. Definitely मैम बहुत अच्छा लगा आज की सेशन में, and I hope sir मैम कि हम लोग और भी सेशंस करेंगे फ्यूचर के अंदर, अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे अगर आप फ्री होंगे तो, and we will try to cover up ma'am as many products as possible. Maybe next Sir, I would request कि आप पूरा एक महीना ले लीजिए, take 1 month and every Saturday, because I don't मैं हमेशा कभी भी एक साथ पूरी ट्रेनिंग इसीलिए नहीं करती हूँ because आपने देखा कि सिर्फ 4 प्रोडक्ट में 1 घंटा लग गया, राइट? और वो 4 प्रोडक्ट लोगों को लेकिन अच्छे से समझ में आ गए, राइट? सो एक या दो सेगमेंट करके हम 4 सैटरडेज के अंदर इन सारे पूरी वर्कशॉप को पूरा कवर कर सकते हैं। देन यू कैन रिकॉर्ड इट एंड देन यू कैन circulate it in your team so that they can understand in a much better way. And then we can have one question answer session as well for 1 hour for the entire team. Sure ma'am, sure, no issues ma'am. मजा आ रहा है मैम आपका ट्रेनिंग सुन के, पहली बार सुना ना हम सभी लोगों ने, तो इट इज completely different for us, और the way you presented it, the skills were really awesome ma'am. Thanks a lot for that. Thank you, so obliged. I hope आप सब लोगों को भी अच्छा लगा होगा. The people are giving good response of the training as well. My email ID is Vaishali, V for Vestige, vaishali@mywestige.com. So I would request कि आप अगर किसी को मेल आईडी फिर भी समझ में नहीं आए तो आप सर से ले सकते हैं. Thank you. Thanks a lot ma'am. Thank you everyone. Thank you ma'am. Thank you. Bye. Take care, sir. Bye. Have a nice day, everyone. God bless. God bless everyone. Thank you.